friends, welcome to Pulse Excel. So today in this session we are going to discuss some of the important announcement regarding your CSR NET 2020 examination, which was supposed to be conducted by the National Testing Agency means NTA in month of June. That will now be held in the second week of November. So these are the actually important announcement which I wanted to cover in the today's session. So the CSR NET examination was first of all postponed because of due to COVID-19 pandemic situation, and that being now scheduled in the second week of November 2020 as per the your official announcement. So now in this session we are going to be briefly discuss the last month strategy for the CSR NET exam, the subject which are having the chemical science and the subject code is 701. So in this session, we are actually briefly talking about the chemistry subject, that how you are going to be prepared, because now these are the actually last week of October, and in the second week of November you are actually CSR NET examination will be there. So how you are now going to be prepared last these 3 weeks? So I'm just supposed to provide you the a similar, or we can say the simply or a normal strategy, that how you are going to be now plan these completely 3 weeks for your NET examination. So just take a look. So before start with the strategy part, I'm just going to be cover up some of the introduction part, so that you should completely aware about your NET examination. So the first of all, this actually examination was conducted by the National Testing Agency, means by NTA, and the exam is going to be conducted twice a year in month of June and the December. And the timing of the examination will be there is a two shift, means morning session and the afternoon session. So the morning session is first of all called as a first shift, which are having timing 9:30 a.m. to 12:30 p.m. And the second shift means your afternoon shift, the timing having 2:30 p.m. to 5:30 p.m. बट आपका जो केमिकल साइंस का जो पेपर होता है वो होता है आफ्टरनून सेशन में, विच आर हैविंग टाइमिंग 2:30 पीएम टू 5:30 पीएम. अब हम लोग बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन. तो यहाँ पे 3 आवर्स का आपका पेपर होगा, दैट विल बी विदाउट एनी ब्रेक. ओके, तो 3 घंटे को आपका पेपर पूरा रहेगा, जिसमें आपको एक भी ब्रेक नहीं मिलने वाला है. ठीक है. So you have to reach your whatever you have the examination center, you have to reach there before 2 hours, and you have to enter into the classroom before 15 minutes and half an hour to get the means introduction about your NET examination. Okay, then followed that basically these exam are going to be conducted for only the two purpose, either for your job or either for your next whatever you wanted to carry out with the research part. मतलब आपको अगर PhD ज्वाइन करना है या फिर जॉब ज्वाइन करना है, तभी हम लोग इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका टाइप होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, विच वी कैन कॉल इट एज अ JRF. और सेकेंड जो पार्ट है वो है आपका फॉर लेक्चरशिप, मीन्स फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, वी कैन कॉल इट एज अ वन काइंड ऑफ द जॉब, मीन्स टीचिंग जॉब. तो इस प्रोफेशन के लिए हम लोग इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं. देन फॉलोड दैट व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कौन से स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए अप्लाई हो सकते हैं. तो BS 4 years प्रोग्राम, BTech, followed that B Pharma, MBBS, integrated BSMS, MSc student. So the most of the these kind of the students are going to be apply for this competitive exam, and these are the actually official website of the NTA and CSR NET. So throughout this website you can always update information regarding your NET examination, and the most major part of this actually session will be the exam date, कि आपका सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में एग्जाम कब होने वाला है. तो एग्जाम का एक्चुअल डेट आया है which was officially announced by the NTA, that 19, 21st and the 26th November. तो ये 3 दिन आपका नेट का एग्जाम होने वाला है, जो आपका जून मंथ में होने वाला था, which was actually postponed because of the pandemic situation. Now these tests will be conducted in the date of the November 19, 21st and the 26th November of the 2020. So after covering the introduction part of your examination, we will see the what is the mode of the examination. तो आपका जो एग्जाम होने वाला है इस साल वो होगा, the examination shall be conducted as computer based test. तो ये ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन आपका एग्जाम नहीं होने वाला है. एंड द सेकेंड, what is the pattern of examination. तो ये बहुत जरूरी पार्ट है, which is heart of the say your today's session. So we can say the test actually will consist of the 3 parts.
बेसिकली पार्ट ए बी सी, ये 3 पार्ट में आपका पूरा पेपर जो होता है वो सॉर्ट आउट होता है, एंड देयर विल बी द नो एनी ब्रेक बिटवीन दिस पेपर. So now how these 3 parts are going to be accommodated by 3 hours, just take a look. So these are the pattern of examination. So as you can see on the slide, in the chemical science student, we are having the 3 parts. First of all, you have the part A, which are carried out the total questions 20. Then we are talking about the part B, which are having total questions 40. Then we are talking about the part C, which are having total questions 60. So this is how in an entire paper you will get total 120 questions, but you don't have to attempt all the 120 questions. Out of that, you have to attempt only the 75 questions, which mentioned over here, student. So I just supposed to explain you all these. Now, as you can see over here, you have to attempt only the 75 questions. So now out of that, first of all, you need to attempt from the part A. आउट ऑफ 20 ओनली 15 क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं, विच इज कैरिड आउट द 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन. तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पे कितना हुआ 15 इंटू 2, तो 30 मार्क्स आपके यहाँ पर होते हैं. देन फ्रॉम पार्ट बी, आउट ऑफ 40 यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 35 क्वेश्चन. ईच क्वेश्चन कैरिड 2 मार्क्स, so this is how the part B carried 70 marks. And for the part C, you have total questions 60, and out of 60 you have to attempt only the 25 questions student, which one question carry the 4 marks. So this is how here you will get the 100 marks. So if I'm going to be now add all these marks together, so total marks will be 200 marks. तो 75 जो क्वेश्चन है उसके लिए यहाँ पर आपको जो अलॉट मार्क हुए वो है आपके स्टूडेंट 200 मार्क्स. तो ऐसे 200 मार्क्स आपका यहाँ पे पेपर होगा. बट अब यहाँ पे वन मोर थिंग है कि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी होता है स्टूडेंट नेट एग्जामिनेशन में. तो आप अगर पार्ट ए और पार्ट बी की अगर यहाँ पर बात करते हो स्टूडेंट, तो पार्ट ए और पार्ट बी में आपको 0.5 नेगेटिव मार्क होता है आप अगर एक क्वेश्चन गलत लिखते हो. तो पार्ट बी में आपको सिमिलरली 0.5 मार्क्स है. बट अगर पार्ट सी में आप एक भी क्वेश्चन गलत सॉल्व करते हो या फिर यू आर गोइंग टू बी अटेम्प्टिंग एनी रॉन्ग क्वेश्चन, तो यू लूज योर 1 मार्क देयर. तो यहाँ पे वैसे आपको नेगेटिव मार्किंग होता है इनटू द पार्ट ए बी सी. So I hope so now you should understand thoroughly. So now as you can see over here student, in the part A, B, C respectively, what I mentioned earlier, that the candidate is required to answer a maximum of 15, 35 and the 25. So total 75 questions you have to attempt from all these 3 parts respectively A, B and C. Followed that part A, that is actually common for all the subjects, means you are the student of the chemical science, so similarly physical science, life science and the environmental science student will be there. तो सबके लिए जो पार्ट ए जो होता है that will be the common. तो पार्ट ए जो होता है basically it is talking about, so this part shall contain questions pertaining to general aptitude with emphasis on logical reasoning, graphical analysis, analytical and the numerical ability, as well as the quantitative comparison series, formulation and the puzzles. So these kind of the actually research aptitude or the general aptitude question coming from your part A. Whereas the part B will be considered as your subjective, means whatever the topic you are going to be select for your net exam. So now here I am going to be consider the chemical science, मतलब chemistry subject से जो होते हैं question जो होते हैं वो subjective question आपको यहाँ पे आते हैं part B में in terms of MCQ. So the part B shall contain subject related conventional multiple choice question generally covering the topic which we discuss in the given syllabus. तो उस syllabus में से ही आपको part B में question आते हैं. Whereas in the part C going to be talking about the higher order questions that may test the candidate's knowledge of the scientific concept as well as the application of the scientific concept. तो basically आप अगर देखते हो तो part A जो होता है वो आपका general है, वैसे part B और C जो होता है वो आपके subject के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है. तो पार्ट बी जो होता है यहाँ पे स्टूडेंट इट्स अ वेरी नॉर्मल, मतलब बहुत इजी काइंड ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं आपके सिलेबस में से. बट बेसिकली पार्ट सी के बारे में आप अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़े से हायर लेवल के, आई कैन से तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर देखोगे स्टूडेंट पार्ट ए बी और सी, अगर मैं पार्ट बी और सी के बारे में सिंपली बात करूं इन द केमिकल साइंस, तो ये जो पूरा नेट का जो पेपर होता है स्टूडेंट, इसके लिए सबसे पहले तो आपका बहुत पहला जो मेन क्वेश्चन होता है कि 11th और 12th का जो है वो आपको पूरा बेसिक क्लियर होना चाहिए. फॉलोड दैट आप अगर बीएससी के स्टूडेंट हो, साइंस स्टूडेंट हो, तो उसका आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए. एंड इफ यू आर गोइंग टू बी अपीयर द एमएससी, तो एमएससी का जो आपका कुछ पोर्शन होता है, कुछ सिलेबस जो होता है वो आपको ओवरऑल यहाँ पे नेट एग्जामिनेशन में होता है. सो दिस इज हाउ फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड टू एमएससी.
इसका पूरा जो बेसिक होता है वो पूरा मिलाकर जो होता है आपका नेट का पेपर होता है, एंड दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द बी एंड सी पार्ट। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट, ओके। अब यहाँ पे हम लोग आगे जाके बात करेंगे स्ट्रैटेजी के बारे में। तो जस्ट टेक अ लुक। अब स्ट्रैटेजी के बारे में जब बात करेंगे तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए, बिफोर स्ट्रैटेजी अप्लाई ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अवेयर अबाउट दी व्हाट इज द कंटेंट एंड व्हाट कंटेंट यू हैव टू अप्लाई द स्ट्रैटेजी। So for that you need to understand the syllabus. So for the chemical science you have only the three background, तीन केमिस्ट्री के यहाँ पे पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है स्टूडेंट यहाँ पे आपका वो होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद जो आपका सेकेंड जो पार्ट है यहाँ पे स्टूडेंट वो होता है आपका यहाँ पर बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री, एंड देन फॉलोड दैट आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होता है यहाँ पर वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। So this is how chemistry will be divided into majorly three part: inorganic, physical, and the organic chemistry. Under these now topics, these are the actually various topics that we are going to be cover in the your syllabus. So as you can see, inorganic, physical, and organic. तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी ये हर किसी का अपना ओन चॉइस होता है, बट अकॉर्डिंग टू मी इफ यू वांटेड टू क्लियर योर एग्जाम, आप अगर क्लासेस लगाते भी हो या आपने कोचिंग क्लासेस ना भी लगाए हो तो भी आई मेक श्योर 100% स्टूडेंट दैट कि आप अगर ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आप 100% नेट एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर पाओगे। तो उससे आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, आप अगर मतलब आपका पूरा बेसिक क्लियर है मान लीजिए तो आप ये तीनों सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट आप मान लीजिए आप अगर एमएससी में जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी टेकिंग द स्पेशलाइजेशन, तो कोई एनालिटिकल केमिस्ट्री का बच्चा या फिर कोई ऑर्गेनिक है या फिर कोई सिर्फ स्टूडेंट फिजिकल और तो उनको लिए वो टॉपिक स्टडी करना बहुत टफ हो जाता है, बिकॉज दे appear MSc semester examination also, and along with that they have to prepare for the net examination also. So in that condition they got the very difficulty in study. So in that condition what you have to do that आपको आउट ऑफ थ्री कॉम्बिनेशन ओनली टू कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है। उसमें से सबसे जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है हमेशा आपका वो होता है स्टूडेंट इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो वहां पे आप फिजिकल केमिस्ट्री ना भी पढ़ते हो तो भी आप 100% पास हो सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा थोरली पढ़ना है, उसके बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा स्टडी करना है, मतलब IO मतलब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का कॉम्बिनेशन होगा। अब दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है आपका इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर गोइंग टू बी फेसिंग मोर डिफिकल्टी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब स्टूडेंट बोलते कि हम लोगों ने पूरा तो स्टडी कर लिया पर जब पेपर सॉल्व करते तो सारा गलत हो जाता है, तो दे गॉट सो मेनी डिफिकल्टी अंडर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट। तो इन दैट सेंस आप क्या कर सकते हो, आप ओनली इनऑर्गेनिक और फिजिकल अगर प्रिपेयर करते हो तो भी आप यहाँ पे एग्जाम आराम से पास कर सकते हो, एटलीस्ट यू विल गेट डेफिनेटली LS, मतलब लेक्चरशिप जो है वो तो आपको यहाँ पे रैंक मिल ही जाएगा उसके लिए। सो यू डोंट वरी। बट आप अगर पूरा क्लियर कर रहे हो, आपका पूरा MSc एग्जाम हो चुका है एंड यू हैव टू डोनेट योर कंप्लीटली ऑल द टाइम फॉर द नेट एग्जामिनेशन, तो आप ये तीनों टॉपिक को यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक। अब बात हम लोग करेंगे सिलेबस में कि हमें सारे टॉपिक यहाँ पे स्टडी करने हैं, तो ऐसी कुछ बात नहीं, इसमें से कुछ सिलेक्टिव टॉपिक है जो बहुत जरूरी होते हैं, जिसमें 100% हर एक साल नेट में उस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही, तो वही आपको टॉपिक करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूँ तो सबसे जो मेजर आपका जो यहाँ पे टॉपिक होता है वो होता है स्टूडेंट कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेस में से हर एक साल आपको डेफिनेटली वन क्वेश्चन इज देयर डेफिनेटली होता है। उसके बाद जो होता है आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ओवर हियर। तो द कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है स्टूडेंट उसमें से भी हर साल डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको वहां पे कंपलसरी रहता ही रहता है वहां पर, तो वो एक आपका मेजर पार्ट हुआ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोला एसिड एंड बेस। सेकेंड उसके बाद जो मैंने आपको टॉपिक यहाँ पे आपको स्टूडेंट बोला वो है आपका यहाँ पे कौन सा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये भी टॉपिक डेफिनेटली हमेशा रहता है। उसके बाद ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड, फॉलोड दैट केजेस एंड मेटल क्लस्टर। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक है स्टूडेंट जिसमें से आपको 100% एक सवाल डेफिनेटली आता है, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है, जो आपको स्किप नहीं करना। ये चार टॉपिक होने के बाद आप जो है नेक्स्ट टॉपिक प्रिपेयर करोगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स का और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का, और उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप रिमेनिंग टॉपिक स्टडी करते हो। बट ये जो मैंने टॉपिक हाईलाइट जो किए वो टॉपिक आपको किसी भी हालत में करना ही करना है। अब हम लोग बात अगर करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, तो आप अगर सिर्फ आईपी टॉपिक ले रहे हो तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट सबसे मेन जो टॉपिक होता है वो है आपका यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से डेफिनेटली वन क्वेश्चन इज देयर। उसके बाद आपको करना है केमिकल काइनेटिक्स, देन आपको करना है
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर आपको करना है पॉलीमर केमिस्ट्री। तो ये जो 4 टॉपिक जो है स्टूडेंट, वो डेफिनेटली जिसमें से आपको हर एक साल एक क्वेश्चन डेफिनेटली वहां पे आने वाला है 2 मार्क्स के लिए। तो ये चैप्टर वहां पे आपको लूज नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड स्टार्ट विद इन द फिजिकल केमिस्ट्री मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, देन प्रिपेयर केमिकल काइनेटिक, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन पॉलीमर केमिस्ट्री, और उसके बाद आपको यहाँ पर स्टूडेंट जाना है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये टॉपिक यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना है, और ये टॉपिक होने के बाद आपको प्रिपेयर करना है स्टूडेंट ग्रुप थ्योरी। मतलब आपने अगर ये इतने टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री में से आप अगर करते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क। अब ये टॉपिक होने के बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक करना है सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट के बाद आपको जाना है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आपने अगर इतने भी टॉपिक यहाँ पे अच्छे से स्टडी कर लिए तो यू विल गेट डेफिनेटली फुल मार्क्स इन द फिजिकल केमिस्ट्री, आई मस्ट से। और उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब सबसे पहले यहाँ पर जब अगर बात होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जो होगा टॉपिक, वो आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है स्टूडेंट पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। बिकॉज पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इट इज एक्चुअली हार्ट ऑफ द योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें 100% हमेशा क्वेश्चन आते हैं। एंड अलॉन्ग विद द पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में जो कंबाइंड जो पार्ट है आपका स्मॉलेस्ट पार्ट, वी कैन से द फोटोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले तो आपको इसका प्रिपरेशन करना है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होने के बाद जो आप नेक्स्ट टॉपिक करोगे वो है आपका ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको बहुत अच्छे से मैकेनिज्म का पार्ट स्टडी करना है। उसके बाद आपको जाना है नेम रिएक्शन के साथ, तो ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट, ये पूरा पार्ट आपको कंपलसरी करना है। यू डोंट हैव टू स्किप दिस हाइलाइटेड पार्ट, तो आपको कंपलसरी। तो सबसे पहले आपका हुआ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, उसके बाद हुआ आपका कौन सा ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, और उसके बाद आपको करना है नेम रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे एक मिस्टेक ये करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप स्टडी करते हो, do not directly jump to the name reaction and rearrangement before completion of the reaction mechanism. So in that sense, what they are going to be facing the so many difficulty to understand the name reaction. So that's why before start with the name reaction, you first of all cover the completely reaction mechanism. Once you understand completely reaction mechanism part student, then you are going to be very comfortable to understand all the name reaction over here. तो ये पार्ट आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। वो होने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आप प्रिपेयर करोगे स्टूडेंट, वो है आपका एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी पूरा अच्छे से आपको करना है, बिकॉज इसमें से भी आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। एरोमेटिस के बाद जो आपको चैप्टर प्रिपेयर करना विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है स्टूडेंट आपका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में आपका बेसिकली आएगा एनएमआर, आईआर, यूवी विजिबल। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट होता है स्टूडेंट, आप अगर आईआर और एनएमआर ये भी यहाँ पर करते हो टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, तो इनफ है जिससे आप स्ट्रक्चर इजीली डिटरमाइन कर सकते हो नेट एग्जामिनेशन में। तो ये पार्ट आपको थॉरली करना है। अब इतना सारा पार्ट ऑर्गेनिक में आपका प्रिपरेशन होने के बाद आप अगर कुछ करना चाहते हो तो आप इसके साथ जा सकते हो स्टीरियोकेमिस्ट्री। उसके बाद आप आईयूपैक नॉमेनक्लेचर को टच कर सकते हो, और लास्टली जो आपको प्रिपरेशन करना है वो है केमिस्ट्री ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट। बिकॉज केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट में जो क्वेश्चन जो होते हैं बेसिकली coming from the amino acid and the carbohydrate, okay, that will you already learn into the your BSc। तो आपका बहुत इजीली आसानी से हो सकता है वो पार्ट, तो वो आप वहाँ पे कर सकते हो। तो दिस इज हाउ द टॉपिक विच यू हैव टू व्हाट कंप्लीटली अंडरस्टैंड फ्रॉम द सिलेबस। तो ये आपको टॉपिक किसी भी हालत में करना है। अब हम लोग आगे बात करते हैं आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस पार्ट, द मेजर पार्ट ऑफ द टुडे सेशन, द स्ट्रैटेजी। अब मैं जो आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी स्टूडेंट बताने वाली हूँ, वो स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी सिर्फ जो फुल टाइम जो स्टूडेंट्स जो है जो कोचिंग सेंटर में स्टडी करने के लिए जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे बच्चे जो कोचिंग सेंटर की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो फुल टाइम कंप्लीटली घर पे बैठ के स्टडी करने वाले, उनके लिए स्ट्रैटेजी। अब मान लीजिए आप अगर जॉब पे जा रहे हो तो ये टाइम टेबल आपके लिए सुटेबल नहीं है, या फिर आप अगर फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, आप एमएससी के बच्चे हो, तो आपको कॉलेज जाना होता है, आपकी कॉलेज के अदर एक्टिविटीज में भी आप पार्टिसिपेट करते हो, so in that sense you will not get the time to follow this timetable. So this strategy is only applicable for those students who completely donate their entire time for the CSR net preparation, okay। अब जो बच्चे जॉब पे है या फिर जो बच्चे कॉलेज पे जाने वाले, उनके लिए क्या करना है ये भी मैं स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे एंड ऑफ दिस सेशन आई एम जस्ट गोइंग टू बी डिस्कस विद यू। अब आप अगर देखोगे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये पूछते हैं कि मैम एक्चुअली कितना टाइम हमें पूरे दिन में स्टडी करना चाहिए, या फिर कितना वक्त हमें पढ़ाई के लिए देना चाहिए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक जवाब यहाँ पे 100% श्योर करूंगी स्टूडेंट, कि पढ़ाई के लिए वैसे कोई टाइम नहीं होता, या फिर कोई वक्त नहीं होता कि मैंने 4 घंटा पढ़ा तो मैं एग्जाम क्लियर होने वाला, या फिर मैंने 18 या फिर 20 घंटा पढ़ा।
ये आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके स्मार्टनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा होता है कि जिसका 11th 12th और बीएससी का जो बेसिक वो कंप्लीटली है, तो उस बच्चे को सिर्फ 4 आवर्स में हम लोग अगर पढ़ाई करने के लिए डे प्रोवाइड करें, तो वो उसमें भी वो टॉप आ सकता है और रैंक ला सकता है, ए रैंक में आ सकता है। बट अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जिसका बेसिक ही क्लियर ना हो, तो वो 4 घंटा पढ़ने के बावजूद भी क्लियर नहीं हो पाएगा एग्जाम। करेक्ट? तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी स्मार्टनेस के ऊपर एंड आपके बेसिक के ऊपर कि आपका केमिस्ट्री बैकग्राउंड में कितना बेसिक क्लियर है। So first of all student here before applying the any strategy you need to analyze yourself। तो सबसे जो मेन क्वेश्चन आता है, मैं हमेशा हर मेरे सारे स्टूडेंट को यही बताती हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यू एनालाइज योरसेल्फ कि आपका बेसिक कितना क्लियर है। आई ऑलवेज सेड टू देम कि ऑलवेज कंसीडर टू योरसेल्फ जीरो, जीरो से शुरुआत करो फिर आप टॉप पे जाओ। ऐसे नहीं कि मुझे बहुत कुछ आ रहा है और मैं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सारे बच्चे फिर आगे जाके बहुत सारे टाइम पे वक्त में डिमोरलाइज हो जाते हैं। So always start the best strategy that you should consider yourself zero and then from you should start with the toughest your pathway। अब यहाँ पे जो ये टाइम टेबल है इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। अब ये जो टाइम टेबल है बिफोर स्टार्ट विद दिस स्ट्रेटेजी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने नीचे एक पॉइंट स्टूडेंट हाईलाइट किया हुआ है। वो यहाँ पर पॉइंट है स्टूडेंट दैट विल बी, तो ये यहाँ पर जो पॉइंट है वो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है दैट 7 आवर्स ओके स्लीप विल बी कंपल्सरी। तो ये आपको यहाँ पे पॉइंट कंपल्सरी याद रखना है कि कोई भी स्ट्रैटेजी जब आप अप्लाई करते हो तो आपको स्लीप को अवॉइड नहीं करना फॉर योर गुड हेल्थ while you are going to be prepare any competitive exam, so the 7 hours sleep compulsory। उसके बाद आप आपका खुद का भी टाइम, ऐसी जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि मैंने जो टाइम टेबल आपको बना के दिया है वही आपको फॉलो करना है, बिकॉज हर किसी का टाइम वर्क वो अलग अलग होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट whichever time is going to be comfortable you should make your own timetable। तो ये मैंने एक्चुअली जब मैंने नीट का एग्जाम दिया था तब मैंने ये प्रिपेयर किया था एंड एक्चुअली मैं सीएसआर नेट का जो एग्जाम था मैंने प्रिपेयर किया था अकॉर्डिंग टू दिस टाइम टेबल। इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आई एम गोइंग टू बी क्लियर द एग्जामिनेशन ओके। तो ये बहुत अच्छे से टाइम टेबल है। सबसे पहले तो क्या करना है स्टूडेंट, 7:30 से लेकर के 8:30 AM इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग आपको कोई भी न्यू चैप्टर, जैसे मैंने अभी सिलेबस आपके साथ डिसाइड किया, तो मैंने आपको प्लान दिया था कि आउट ऑफ 3 you should select any two plan either inorganic physical और inorganic organic। उसमें से आपको क्या करना है, पहले तो सिलेबस फ्रेम करो। सिलेबस फ्रेम होने के बाद उसमें से आपको एक टॉपिक चूज करना है कि कौन से दिन आपको कौन सा टॉपिक स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद आपको वंस यू आर गोइंग टू बी डिसाइडेड द टॉपिक, उसके बाद आपको क्या करना है, वो न्यू चैप्टर आपने सिलेक्ट किया वो आपको स्टडी करना है 1 आवर के लिए। उसके बाद 8:30 to 9 हाफ एन आवर के लिए आपको जो भी आपकी एक्टिविटी है, ब्रेकफास्ट है, रिफ्रेश होना है वो करके लो। फिर 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक दिस 2 आवर्स यू हैव टू रिवाइज योर कंप्लीटली होल चैप्टर जो आपने मॉर्निंग में स्टडी किया था। तो बेस्ड ऑन दैट चैप्टर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर सिर्फ चैप्टर को रिवाइज करो। दैट इज गोइंग टू बी इनफ, बिकॉज मॉर्निंग का जो टाइमिंग होता है दैट इज द स्मॉलेस्ट टाइम आई शुड ऑलवेज कंसिडर। और जो आफ्टरनून में आपको टाइम मिलता है वो जरा आपका ज्यादा टाइम होता है। ये होने के बाद आपको क्या करना है, 11 to 11:30 दिस हाफ एन आवर यू हैव टू रिफ्रेश। रिफ्रेश में आप सोशल नेटवर्किंग साइड है, आपके मेल चेक करनी होती है आपको, या फिर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, टेलीग्राम ग्रुप है आपका, व्हाट्सएप ग्रुप है, चार्ट वगैरह जो भी है वो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं सिर्फ आधे घंटे के लिए। तो रिफ्रेश कर लो थोड़ा माइंड, या फिर बाहर जाकर आओ। आफ्टर द रिफ्रेशमेंट ऑफ दिस हाफ एन आवर अगेन फ्रॉम 11:30 to 1:30 PM आपको सेम चैप्टर जो आपने मॉर्निंग में स्टडी किया था उसमें से आपको चेक करना है कि आपका कोई न्यू कंसेप्ट है जो आपको नहीं पता है, जो आपने 9 to 11 इस टाइम में आपने जो रिवाइज किया था, तो आपको पता चलता है कि रिवीजन करने के वक्त कि आपका ये टॉपिक उसमें से छूट गया, तो वो टॉपिक जो है वो आपको अगेन यहाँ पे फ्रेमिंग करना है इंटू 11:30 to 1:30 PM from this same chapter। so once you are going to be completing with this chapter 1:30 to 2 again हाफ एन आवर के लिए आपका यहाँ पे टाइमिंग होगा लंच के लिए, तो खाना अच्छे से खा लीजिए। उसके बाद 2 बजे से लेके 5, अब आफ्टरनून का ये जो स्लॉट है ये बहुत बड़ा स्लॉट होता है स्टूडेंट, जिसको आपको थोड़ा भी नजरअंदाज नहीं करना है, बिकॉज ये टाइम जो होता है ये बहुत क्रुशियल टाइम होता है जहां पर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली 2 से लेके 5 बजे तक कंप्लीटली 3 आवर्स आपको अगेन यहाँ पे न्यू चैप्टर लेना है, जो मॉर्निंग में पढ़ाई किया था वो नहीं। न्यू चैप्टर का मतलब मान लीजिए मेरा कॉम्बिनेशन मैंने लिया है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, तो आप अगर आपको पता है कि मेरा ऑर्गेनिक थोड़ा वीक है और इनऑर्गेनिक में मेरा बहुत सारा रिवीजन हो चुका है, तो हम लोग अभी ये जो बात करें सुने लास्ट मंथ के बारे में बात करिए, तो मतलब मेरा पढ़ के हो चुका है। अब मेरा 2 मैंने सिलेक्ट किया है टॉपिक, एक तो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक मेरा बहुत सारा हो चुका है, तो जो मेरा बहुत सारा पढ़ के हो चुका है वो टॉपिक में स्टडी करूंगी मॉर्निंग में। अब ऑर्गेनिक है मेरा दूसरा पार्ट जिसका मेरा बहुत सारा टॉपिक वीक है,
तो वो जो वीकेस्ट पार्ट जो है जिसका मेरा बहुत सारा पढ़ाई बाकी है स्टूडेंट, वो आपको लेना है आफ्टरनून सेशन में। तो अब मान लीजिए मॉर्निंग में मैंने इनऑर्गेनिक में से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चॉइस किया, तो अब 2 से 5 के टाइम जो मैं स्टडी करूंगी 3 आवर्स के लिए, वहां पर मैंने लिया स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। टॉपिक जो मेरा नहीं हुआ है, जो बड़ा टॉपिक है जो मेरा बाकी है, तो वो मैं रिवाइज करूंगी 2 से लेकर 5 बजे, तो मतलब 3 घंटे में। उसके बाद आपको फिर से क्या करना है, 5 to 5:30 इवनिंग स्नैक, थोड़ा सा रिफ्रेश हो लो, यहाँ वहाँ जाकर आ, उसके आधे घंटे के बाद फिर से आपको 3 आवर्स के लिए, मतलब 5:30 से लेके 8:30 पीएम, आपको क्या करना है अभी, आप अगर यूट्यूब चैनल देखते हो, किसी की वीडियो, आप कोई स्टाफ जो होता है, कोई टीचर है जिसका आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, एक्सेप्शनल, ऐसे नहीं कि मैं आपको अगर यहाँ पे कुछ बता रही तो आपको मेरे ही वीडियोस देखने, देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोस आर गोइंग टू बी अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल, from that actually YouTube sources you will get the so many information. Then apart from that chapter revision जो भी आपका हो यूट्यूब से आपको करना है, और आपको यहाँ पे डाउट सॉल्व सेशन कंपलसरी रखना हर एक दिन, मतलब जो भी आपने एंटायर डे स्टडी किया मॉर्निंग में और आफ्टरनून में, उसके रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स है वो आप यूट्यूब थ्रू लेक्चर दे सकते हो, और उससे आप क्या कर सकते हो, चैप्टर को फिर से रिवाइज करना है आपको ये 3 घंटे में। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से 1 आवर फ्रॉम 8:30 to 9:30 पीएम, ये जो 1 घंटा आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा डिनर करने के लिए और रिफ्रेशमेंट के लिए। तो 1 घंटा अच्छे से, उस वक्त आपको पढ़ाई के बारे में कुछ भी सोचना नहीं, प्रॉपरली रिफ्रेश हो जाए, खाना पीना खा लीजिए, एंड आफ्टर दैट अगेन फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स 9:30 to 11:30 पीएम, इस वक्त आपको क्या करना है, ये सबसे मेन टाइमिंग होता है 9:30 to 11:30। अब जो एंटायर डे जो स्टूडेंट है, जो मैंने जो कुछ भी एक्टिविटी की है ना स्टूडेंट, पढ़ाई जो भी मैंने किया हुआ है उसका आपको क्या यहाँ पे करना है स्टूडेंट, प्रिपेयर दी माइक्रो नोट्स। अब आपको यहाँ पे माइक्रो नोट्स बनाया है, जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर ऑफ डिटर्मिनेशन जो किया है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो चैप्टर पढ़ा, उसमें से आपको क्या करना है, अभी माइक्रो नोट्स का मतलब होता है कि उसमें से जो हाईलाइट, जो मेन जो पॉइंट होते हैं, जो सिर्फ याद करने से आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो, उसे हम लोग बोलते हैं माइक्रो नोट। तो वो आपको स्मॉलेस्ट प्रिपरेशन करना है, माइक्रो नोट्स बनाने हैं, एंड देन रिवाइज होल डे एक्टिविटी, और जो भी आपने पूरे दिन भर स्टडी किया हुआ है उसको एक बार रिवाइज करो, और उससे आपको क्या करना है, यहाँ पे माइक्रो नोट्स प्रिपेयर करने एंड नेक्स्ट डे के लिए प्लान करना है। तो दिस इज हाउ दीज आर द एक्चुअली होल एक्टिविटी फॉर दो स्टूडेंट who prepare completely whole time for the नेट एग्जामिनेशन। अब हम लोग बात करते हैं जो स्टूडेंट एक्चुअली जॉब पर है, या फिर जो स्टूडेंट आई मीन टू से कॉलेज स्टूडेंट है, तो वहां पर उन स्टूडेंट को मैं पक्का बताना चाहूंगी स्टूडेंट, बिकॉज ये एग्जाम जो होता है ये पूरे साल में 2 बार आता है, दिसंबर में और जून में। आप अगर उस वक्त, क्योंकि क्या होता है दिसंबर मंथ में बहुत सारे कॉलेजेस में उनका सेमेस्टर एग्जाम भी चालू रहता है, एंड इन बिटवीन दैट नेट एग्जामिनेशन ऑल्सो भी देयर, तो आप फोकस नहीं कर पाते हो कि मुझे नेट का प्रिपरेशन करना है या फिर फाइनल सेमेस्टर का। तो मैं यहाँ पे प्रॉपरली सजेशन आपको करूंगी, नेट तो एग्जाम कॉम्पिटिटिव आप बाद में भी दे सकते हो नेक्स्ट मंथ जून में, बट तब आपको आपके कॉलेज का जो एग्जाम है वहां पर ही फोकस करो। और आपको अगर नेट भी देना है तो इन दैट सेंस आप क्या करो, पूरे दिन भर में आपका जो भी कॉलेज वर्क है वो सारा कर लो, और ओनली द 2 आवर्स आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग टॉकिंग अबाउट द फाइनल ईयर एमएससी स्टूडेंट, सिर्फ 2 घंटा, क्योंकि आपका ऑलरेडी एमएससी में जो आप लेक्चर जो चले तो उसमें आपका पूरे साल भर में ऑलरेडी प्रिपरेशन होते ही रहता है, बिकॉज ऑफ दैट यू आर ऑलरेडी ब्रश अप विथ योर बेसिक नॉलेज। तो आपको सिर्फ 2 घंटा इनफ है, 2 घंटे में आप आपका टाइम टेबल सेट कर लीजिए, और वो डेली 2 घंटा आपको नेट का वहां पे प्रिपरेशन करना है। और जॉब जो करते हैं उनके बारे में भी मैं यही बताऊंगी कि आप पूरा दिन जॉब करते हैं, देन यू आर गोइंग टू बी कंप्लीटली टायर्ड, सो यू विल नॉट गेट द टाइम। तो उनको भी आपको क्या करना है, सिर्फ 2 आवर्स निकालना है आपको डेली के, और 2 घंटे में आपको नेट का प्रिपरेशन करना है। अब वो 2 घंटे का जो प्रिपरेशन होगा वो आपको कैसे फ्रेमिंग करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो जस्ट टेक अ लुक ना, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस टाइम टेबल स्ट्रैटेजी, और ऐसे नहीं स्टूडेंट की जो मैंने बताया यही आपको फॉलो करना है। अकॉर्डिंग टू दिस यू शुड मेक योर ओन इंटायर टाइम टेबल फॉर योर 24 आवर्स, बट जिसमें आपको क्या करना है, 7 घंटे का स्लीप का टाइम कंपल्सरी रखो स्टूडेंट, बिकॉज ये बहुत जरूरी है फॉर योर गुड हेल्थ। अब हम लोग नेक्स्ट जो है बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी कि आपको वो सारे फाइल्स फ्रेमिंग कैसे करने हैं। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है, थोड़ा आपको कुछ फाइल्स बनानी है यहाँ पर फॉर योर बेटर प्रिपरेशन, जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट होता है सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है स्टूडेंट, आपको सिलेबस का एक फाइल बना लो सबसे पहले, और वो सिलेबस में से आपको कौन से टॉपिक बहुत अच्छे से आते हैं और कौन से टॉपिक नहीं आते, कौन से टॉपिक आपको सबसे पहले करना है स्टार्ट, वो सिलेक्ट करो, उसको हाईलाइट करो, और बेस्ड ऑन दैट जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो उसके साथ आपको अटैच करना है। तो सबसे पहले आपको एक फाइल बनानी है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है आपको सिलेबस के नोट जो होते हैं उसका एक अलग फाइल बनाना है, जो आपने इतने दिनों तक पढ़ाई किया, बिकॉज ये मैं लास्ट मंथ की प्रिपरेशन के बारे में बात कर रही हूँ।
तो अभी तक आपके पास आई थिंक सो ये फाइल तैयार होगा। अब इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, सिलेबस की जो नोट जो आपने पूरे साल भर जो आपने पढ़ाई किया, उसकी नोट्स की एक सिंगल फाइल आपको यहाँ पे रेडी रखनी है। और उसके बाद लास्टली टेस्ट, तो जो भी पूरे साल भर आप टेस्ट सीरीज आप अगर कोचिंग सेंटर में जाते हो तो जो भी टेस्ट अपने मर्जी जितने भी मर्जी सॉल्व करे हो उसका एक फाइल बना लो, या फिर आपने अगर क्लासेस नहीं भी लगाए हो तो जो भी आपने टेस्ट प्रैक्टिस किए हो, पेपर जो आपने सॉल्व किए हो उसका एक फाइल बना लो। तो ये 3 फाइल आपको यहाँ पे रेडी रखना है। उसके बाद आपको स्टूडेंट क्या करना है, अब ये जो बात मैं बता रही हूँ ये लास्ट 10 डेज के बारे में बात कर रही हूँ, मतलब अभी 3 वीक्स है अभी फिलहाल आपके हाथ में। तो ये 3 वीक्स में ही आप टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो, आपका टाइम टेबल फ्रेमिंग कर लो, बना लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो। अब हम लोग बात करेंगे सिर्फ लास्ट 10 डेज के बारे में, जब आपका एग्जाम आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मेजर पॉइंट जो है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मैम हम लोग बहुत स्ट्रेस में आ रहे हैं, लास्ट 10 डेज बचे हुए कि हमें पढ़ाई कैसे करना है। सो दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी वरीड अबाउट देयर फाइनल एग्जाम। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी, सबसे पहले तो स्ट्रेस डेफिनेटली मुझे भी आया था जब मैंने नेट का एग्जाम दिया था, और हर किसी को आएगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मेजर जो बात है, सोशल नेटवर्किंग साइट जो है कंप्लीटली आपको कट ऑफ करना है स्टूडेंट। मतलब क्या होता है कि लास्ट टाइम में आप अगर कुछ प्रिपरेशन करते हो, आपका कोई टेलीग्राम ग्रुप है या फिर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वहां पर आप अगर कुछ प्रिपरेशन करते हो, वहां पर देखते हो, उनके साथ डिस्कस करते हैं, देन यू शुड डिमोरलाइज कि मैंने इतना पढ़ाई करने के बाद भी मैं अच्छे से पेपर नहीं सॉल्व कर पा रही, या फिर मैं कुछ गलत करी, वो कितना अच्छे से कर रहा है। सो यू हैव टू कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम सोशल नेटवर्किंग साइट सो दैट यू शुड नॉट डिमोरलाइज। तो यहाँ पे आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपलिफ्ट करना है, नहीं कि आपको कम करना है। तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा अपलिफ्ट होने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट को कट ऑफ कर दो। आपको कुछ चेक नहीं करना है, नहीं टेलीग्राम ग्रुप, नहीं व्हाट्सएप ग्रुप, कौन क्या पढ़ाई कर रहा है, आपको कुछ फोकस नहीं करना। यू ओनली फोकस योर सेल्फ कि आपका कितना पढ़ाई हुआ है, उसके ऊपर ही आपको लास्ट 10 दिनों में फोकस देना है। फ्रेंकली स्पीकिंग आपको यही करना है। तो थोड़ा सोशल डिस्टेंस बना के रखो सबसे, खुद को लॉक करो और सिर्फ फोकस करो कि मैंने कितना रिवाइज किया है इतने दिनों तक। उसके बाद आपको क्या करना, हर एक दिन यू हैव टू एनालाइज द पेपर। हर एक दिन प्रीवियस ईयर के जो भी आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं, चूज एनी वन पेपर ईच एंड एवरी डे। पेपर को ऐसे मान लो कि आज आपका टेस्ट पेपर है, आप नेट का एग्जाम ही देने वाले हो, 3 घंटा वहां पे आपको समझना है कि आप पेपर पे बैठे हो, तो आपको पेपर 3 घंटा विदाउट यहाँ वहां देखे बिना पेपर सॉल्व करना है। पेपर सॉल्व करने के बाद आपको क्या चेक करना है, अटेम्प्ट एंड बट रॉन्ग। आप चेक करो कि मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए बट वो रॉन्ग हुए है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंसेप्ट स्टडी बट वुडन अटेम्प्ट। तो आपको ये भी नोटिस करना है, आपको पेपर को एनालाइज करना है कि ये तो मैंने कंसेप्ट स्टडी किया था बट मैं सॉल्व नहीं कर पाया। तो आपको वो रीजन आइडेंटिफाई करना है कि मैंने पढ़ाई किया था तो मैं ये सॉल्व क्यों नहीं कर पाया। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द वीकनेस इन द लास्ट 10 डेज। तो आपको अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करना है, जैसे कि मैंने अब आपको यहाँ पे बताया, once you are going to be analyze the paper, work on your weak area। उसी दिन जब मैंने पेपर आज मैंने सॉल्व किया है, मैंने देखा कि मैंने ये कंसेप्ट स्टडी किया बट मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, ये आपको रीजन ढूंढना है। फिर उस वीक एरिया पे आपको वहां पे वर्क करना है, और वहां पे आपको वो फाइनलाइज करके उसके नोट्स बनाने। और फाइनली राइट डाउन योर प्लान फॉर द नेक्स्ट डे। इन ईच एंड एवरी 10 डेज आपको नेक्स्ट दिन के लिए क्या प्लान करना है। तो आज अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने 2011 का पेपर सॉल्व कर लिया, तो नेक्स्ट डे मैं अभी 2014 का पेपर सॉल्व करूंगी। देन आई एम गोइंग टू बी अटेम्प्टिंग दैट पेपर, find out the paper, my mistake, my wrong, my weak areas, everything, and then you should complete it, prepare in the last 10 days. So that what will happen, after cut off the social networking sites and the social distance, when you are going to be actual, okay, प्रेजेंट ऑन द योर नेक्स्ट डे, जब आपका पेपर होगा और आप पेपर सॉल्व करोगे, उस वक्त पूरे 10 डेज में आपने जितने भी मिस्टेक करा है, जितने भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करे, वो आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे, एंड यू शुड कंप्लीटली फोकस ऑन योर पेपर। तो उससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बहुत अपलिफ्ट होगा, बिकॉज आप कंप्लीटली 10 दिन वही काम कर रहे हो, आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो आपको आपकी मिस्टेक्स पता चल रही है, आपको आपका वीक एरिया पता है, और आपने वो कंप्लीटली अपलिफ्ट कर लिया है। तो आपको पता है कि मुझे कैसे स्ट्रैटेजी को प्लान करना है, बिकॉज हर एक किसी का स्ट्रैटेजी अलग होता है, मेरा अलग है, आपका अलग है डेफिनेटली। तो इस हिसाब से आपको आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बूस्ट करना है, एंड आई होप सो आप अगर ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हो स्टूडेंट, तो डेफिनेटली स्टूडेंट, आप अगर क्लासेस जाते हो या ना जाते हो, दोनों केस में आप अगर ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे फॉलो करोगे, यू शुड मेंटेन दिस फाइल, तो डेफिनेटली 100% मस्त से आप नेट एग्जाम यहाँ पे क्लियर करते ही करते हो। मतलब डेफिनेटली आपको एलएसओ मिलेगा ही, और जेआरएफ अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो तो जेआरएफ भी आपको यहाँ पे मिलने ही वाला है। तो सिर्फ आपको 75 क्वेश्चंस का आपका टारगेट है, 200 मार्क्स आपको लाने हैं। तो आपको सिर्फ प्लान करना है
कोई भी एनी 2 टॉपिक्स इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक या फिजिकल। और आपका अगर सारा मतलब जनरल केमिस्ट्री के बच्चे हो तो आप तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। So I hope so this last few weeks definitely this strategy will be work out for you। और still आपको अगर इसके बारे में कुछ अगर डाउट लगता है या फिर आपको कुछ हेल्प चाहिए फ्रॉम माय साइड, आई डेफिनेटली